Jeptule Ayub, I'm Mike Shakti. आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 1156, दिन गुरुवार, तारीख 20 फरवरी 2025। और आज हमने स्पेशल एक आ रहे हैं हमारे बीच में आदरणीय प्रदीप गुप्ता जो एडवोकेट हैं, हमारे मित्र मुकुल गुप्ता जी के बेटे हैं। और आज आपका जो विषय है वो है एमनेस्टी स्कीम एंड रिसेंट चेंजेस इन जीएसटी। अब ज्यादा समय तो हम आदरणीय मोहित गोलचा साहब से निवेदन करते हैं कि थोड़ा सा सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करें, थोड़ा सा प्रदीप जी के विषय बताएं। मोहित जी हमारे एफटीपी के मेंबर हैं, काफी लर्नेड स्पीकर हैं, जगह जगह अपनी उद्बोधन देते रहते हैं। अभी हमने रिसेंटली इनका उद्बोधन सुना था। आदरणीय मोहित जी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक अच्छा टॉपिक है इन टर्म्स की भाई सेंसिटाइज टॉपिक है कि जहां पर एमएसटी स्कीम डिस्कस होगी विद recent changes which are impacting our day-to-day life in the GST। और अरविंद जी का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी जिसमें मैं प्रतीक जी को इंट्रोड्यूस करूंगा और थोड़ा सा टॉपिक के बारे में बताऊंगा। तो बिफोर वी स्टार्ट लेट मी इंट्रोड्यूस द स्पीकर जो हमें 1 घंटे अपने नॉलेज से सबको अपडेट करेंगे विच वुड बी हेल्पफुल इन आवर फ्यूचर सो एज टू हैंडल द जीएसटी। सेशन शुरू होने से पहले यही डिस्कशन हो रहा था कि जीएसटी में अमेंडमेंट जिस रफ्तार से चल रही है कि कहीं ना कहीं सेंसेक्स भी हमारा उस रफ्तार से बढ़ा था। तो उसको सबको ध्यान में रखते हुए प्रतीक जी हमें 1 घंटे में सब कुछ बताएंगे कि एमएनसी स्कीम क्या है और रीसेंट चेंजेस क्या है। तो विदाउट टेकिंग मच टाइम लेट मी इंट्रोड्यूस Prateek Gupta. He is a well-renowned advocate in the field of the taxation. He is a part of a group in terms his father is also a legend in himself, Mr. Mukul Gupta, and he has continued and he has joined his father firm and taken the legacy to the next level. So with these words, I would ask Mr. Prateek to start the session and elaborate and enlighten us in respect of the scheme as well as the recent changes which are happening in the GST. Thank you, Mohit ji, and thank you, Arvind ji, for giving me this opportunity to share the knowledge today with all the and taking out time on a working day at 6 in the evening. So I'll start with my topic, that is amnesty scheme. I would request Arvind sir to please allow the screen sharing. मैंने कर दिया आपको ना, देखिए हो गया। मुझे फोन करके जाता है। Is my screen visible to everyone? Yeah, okay. Yes, you may go on. Yes. So my topic is amnesty scheme and recent changes in GST. So there's an amnesty scheme which has been introduced, and this is for period 1718 to 1920. And the reason for coming of this amnesty scheme is that there were a lot of tax demands for financial year 17, 18, 18, 19, 19, 20. And there was a huge burden of interest and penalty levied on the SSCs. So in cases, there were tax demand for, say, 1 lakh rupees, and there was a penalty of 1 lakh rupees and an interest of 1 lakh rupees. So the SSC was paying 3 lakh rupees for a demand of 1 lakh rupee of tax. So there was a lot of plea from the taxpayers that there should be some amnesty scheme relief should be given, because GST law was a new law and there were a lot of problems in compliance of the law initially in the period of 3 years of GST when the GST law was introduced. So today we will be covering the amnesty scheme which is there in section 128A regarding the waiver of interest and penalty. Then we would also be covering amnesty scheme under section 16.5 for demands of non-compliance of section 16.4. Then we'll be moving on to amnesty scheme for waiver of late fees under section 47, that is for annual return and reconciliation statement. Then I would be covering recent changes in GST on
mandatory mentioning of HSN code in GSTR 1 and 1A. Then we'll be covering recent changes on advisory on introduction of Form ENR 03, that is regarding to generation of e-way bill by unregistered person. This is very new and very interesting. And we will also get to know why the government have introduced this ENR 03. Then we'll be covering the concept of ISD mechanism in GST and what is the change going to happen from 1st of April in ISD compliances. Then recent change is regarding to track and trace mechanism, which has been introduced by the new finance bill, and what are the implications and issues which may arise from track and trace mechanism, which has been introduced. So I'll start with my first subject, that is amnesty scheme under section 128A, that is for waiver of interest and penalty or both for demand under section 73. So what is section 73? We first need to understand that these are demand under section 73 are generally for non-fraud cases where a show cause is issued to the SSC for any mismatch or for any issue where there is no element of fraud or collusion or suppression of facts. So in all these cases, the amnesty scheme has been introduced for a financial year 17-18 to 19-20. Now, in this regard, notification 20 of 2024 and notification 21 of 2024 of central tax, both dated 8th October 2024, was introduced and have been brought in place. And through these notification, a new section 128A was inserted in the Act, effective from 1st November 2024. And a new rule has been introduced, that is Rule 164 from 1st November 2024. Now, notification 21 of 2024 sets the timeline for this amnesty scheme. That is the last date to avail this amnesty scheme. That is 31st March 2025. That is a deadline of 6 months from the date of determination of order. So if any order has been passed, then if the amnesty scheme has to be availed by any SSC, then they must apply or avail the scheme by 31st March 2025. Now, who is eligible for an amnesty scheme? These are cases where show cause notices have been issued or a demand order have been issued under section 73 as non-fraud cases for financial year 17-18 to 19-20, where a demand is raised for non-payment of tax, short payment of tax, or ITC wrongly availed or utilized, except the demand for refund taken erroneously. So if someone has taken refund wrongly by giving wrong facts, then that person cannot avail the amnesty scheme in case that person has received a show cause notice or has a demand order. Now, what is section 128A? It basically covers show cause notice issued, but no order passed by the assessing authority. Then adverse order passed by adjudication officer or assessing authority, but first appeal not filed. Or if first appeal is filed, but no order has been passed. So appeal is pending. And also covers scenarios where adverse order is passed by first appellate authority, but the appeal is not filed before GSTAT. And fourth one, which is not clearly mentioned, but this is the interpretation for taking the benefit under the amnesty scheme. That is, first appeal has been filed against a demand order under section 74, but during the course of hearing of appeal, it is found that there is no element of fraud or suppression or collusion. And the appellate authority decides that this demand should be under section 73 and not in 74. Then also the taxpayer can avail the amnesty scheme by filing form GST SPL 02. Now, there are two forms to avail the amnesty scheme, that is GST SPL 01, if there is an SCN but no order has been passed by the assessing authority. So these two forms are live on the GST common portal, and now SSCs can go and apply and avail the amnesty scheme
And there's one more form, that is GST SPL02. And this form needs to be filed when there is an adverse order passed by the adjudication officer, but appeal is not filed, or in scenarios where appeal is filed but there is no order passed by the first appellate authorities, or in cases where there is a adverse order by the first appellate authority but appeal is pending before GSTAT. So in case there are SSCs who are having matters pending in appeals or writ, they have to withdraw, or they have to withdraw their pending appeals and writ petitions for applying in the waiver scheme, the amnesty scheme. And proof of withdrawal of appeal or writ needs to be attached while filing the application in SPL 02. Now, what is the process to avail this amnesty scheme? Entire payment, that is the full payment of tax of demand through ITC or cash, can be made while making the while filing the claim in amnesty scheme. And in case of RCM demand, the tax needs to be paid in cash by DRC 03 or credit ledger in case of a demand in pertaining to forward charge. So the process is very simple. The proper officer will review the application filed in SPL 01 or 02 before 31st March 2025. So this is very important. So all the SSCs must ensure that their application is at least reviewed before 31st March 2025 by the proper officer. If the proper officer has any queries, then a notice will be issued in SPL 03 within 3 months from the date of filing SPL 01 or SPL 02. Taxpayers can file their response in SPL 04 within 30 days from issue of SPL 03. Thereafter, order for accepting the interest and penalty application waiver will be issued in SPL 05 or SPL 06 within 3 months from filing of SPL 04. In case the officer is not satisfied with the response given in SPL 04, then the officer can pass a rejection order of not giving you the benefit of interest and penalty waiver by issuing an order in SPL 07 or SPL 08. So this amnesty scheme is applicable when no appeal is allowed against an order in SPL 05 or SPL 06 when there is a positive order that your application has been accepted. So department cannot go in appeal, nor the SSC can go in appeal. But in case the waiver scheme is rejected, your application is rejected, then you have full right to go in appeal as per the scheme of GST law. In case of SPL 01 or SPL 02, but SPL 03 has not been issued, that means the show cause has not been issued, or the order has not been issued within a period of 4 months from filing of your application, then it is deemed that your application is accepted and you are entitled to get the benefit of interest and penalty waiver. Now, SSCs who are having multiple tax demands created in a single SCN or a single order can avail this scheme. This can be, in case the SSCs have already paid prior to the scheme, the interest and penalty component, then they are not entitled to the refund of the tax which has already been paid and interest and penalty. This is violative of the principles of equality and can be challenged before the high courts in case the amount paid is large. Now I am coming on the amnesty scheme with regard to Section 16.4. Section 16.4 is basically setting up the time limit to avail the ITC. So originally, when the law was introduced, the GST law was introduced, the time limit to avail ITC was from the relevant financial year to the next financial year, September of the next financial year. So ITC could have been, say for 17-18, the ITC could have been maximum availed by September 2018. So this time limit has been increased now
if the claims of ITC have been made till 30th of November 2021 with regard to financial year 17, 18, 18, 19, and 19, 20, and 2021, then the SEC can take the benefit. Any ITC which was denied by issuing the show cause notice or an order, the SEC can now quote the section 16(5), which allows the benefit to the SSCs and avail the benefit of the ITC, which was denied earlier. So in filing this application, notification 22 of 2024 has to be quoted. There is a special procedure for rectification of the orders wherein demand was raised for section 16(4) non-violation or non-compliance. And now the taxpayer can file their rectification application and quote section 16(5) and section 16(6), which covers the cases where SCN is issued but no order has been passed by the assessing authority, and cases where adverse order is passed by the adjudication officer but appeal is not filed, or in cases where there is a negative order from the first appellate authority but there is no appeal filed before the GSTAT. So in all these cases, the SSC can avail the benefit. You can take the benefit of the interest waiver scheme by quoting the section 128A and the citing before the officer to rectify his order. नहीं, जैसे आईटीसी का तो क्लैरिटी दे दी थी, आई थिंक जी सर्कुलर में उन्होंने आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी के कंटेक्स्ट में एम्बिग्यूटी रखी हुई है वो है, बट इफ वी रीड द सेक्शन, to my mind it is very clear that it is pertaining to any mismatch or any demand which is fall in 73. It has not been restricted in the section that only in pertaining to ITC mismatch they would be considering the claims. Of course, if the assessing authorities are not agreeing, you can file the claim and maybe it may need to be litigated to finally avail the benefit. और अच्छी बात क्या है, पोर्टल अलाउ कर रहा है, पोर्टल अलाउ करेगा, नहीं पोर्टल अलाउ कर रहा है. सो वी वर हैविंग अ चैलेंज कि जहां पे हम सोच रहे थे लीगली जब पढ़ रहे थे तब ऐसा लग रहा था क्योंकि ये सेल्फ असेस टैक्स लायबिलिटी में आ रहा था जी, तो वहां पर एक चैलेंज था. और किसी पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन हो तो ही कैन रेज द हैंड. बीच में हमारा ना नेट चला गया था, खराब हो गया था अचानक. अच्छा, दूसरा सर एक, हाँ जी अरविंद जी आपका कोई सवाल है मैं तो कहते बताइए. सवाल नहीं था, मैं तो कहता हूँ मेरा नेट ना बिल्कुल एकदम वो हो गया था सिस्टम पे, फिर दोबारा रिस्टार्ट किया इसको. मेरा कोई सवाल नहीं है, सवाल शायद जितेंद्र मोहन जी का हो सकता है, मैं कैसा करूँ. दूसरा प्रतीक जी, जैसे ये ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म के बारे में आप बता रहे थे इस वक्त, जी सर, इसको आप कैसे विजुलाइज कर रहे हैं आगे? आई मतलब थिंक ये सर किस तरीके से आएगा? ये RFID टैग्स के रूप में हम देख सकते हैं. गवर्नमेंट SSCs को बोलेगी कि कुछ RFID टैग्स टाइप की चीज अपने प्रोडक्ट्स पे आप पेस्ट करिए, so that they can trace where the goods are actually moving, and they would have a unique serial number inside wherein they can scan and find out कि ये गुड्स कहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं, कौन से लॉट के हैं, कौन सी मशीन से बने हैं ये, और उस मशीन की कैपेसिटी क्या थी. बिकॉज वो सारी कैपेसिटीज अभी हम पान मसाला इंडस्ट्री के लिए देख रहे हैं कि इन्होंने उनसे काफी डिटेल्स मांगी इंडस्ट्री से विद रिगार्ड टू देयर मशीनरी एंड देयर कैपेसिटीज कि कितना प्रोडक्शन हो सकता है. एंड पान मसाला इंडस्ट्रीज हम लोग सभी सुनते हैं कि बहुत हाई टैक्स एवेजन एरिया है. एंड इसके बाद मुझे लगता है कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जिसको और लेंस से देखा जाता है, उसमें भी कुछ इस तरह की चीज फ्यूचर में आ सकती है. बट फर्स्ट फेज में मेरे को लगता है कि पान मसाला इंडस्ट्री पे ये अप्लाई करा जाएगा. बट ये डेटरेंट प्रोविजन है फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स बिकॉज दिस विल ऐड एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ डूइंग देयर बिजनेस. और प्रोफेशनली आप क्या अपॉर्चुनिटी एनवर्साइज करते हैं कि इस नए ट्रैक एंड ट्रेस में हम जो जीएसटी के लर्नर हैं उनके लिए कहाँ एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई दे रही है सर? सर इट विल ऐड मोर ट्रांसपेरेंट कंप्लायंस. सो कंप्लायंस की जो अहमियत है, टैक्स पेयर्स को वो
समझ में आएगी, बिकॉज अब सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। जब प्रोडक्शन कैपेसिटी पता है डिपार्टमेंट को, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि प्रोडक्शन काम दिखाया जाए और उसको गलत तरीके से एसएससीज करें। तो मतलब कंप्लायंस बढ़ेगी, थोड़ा कंप्लायंस की वैल्यू समझेगा। जो कंप्लायंस में अभी क्लाइंट्स नेगोशिएट करते हैं कि कंप्लायंस इज जस्ट फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, इट इज पंचिंग ऑफ नंबर्स इन द रिटर्न, वो इतना सिंपल नहीं है। तो जो मेजोरिटी ऑफ द कंसल्टेंट्स हैं जो रिटर्न फाइलिंग का काम करते हैं, उनके लिए मेरे को लगता है कि इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। थोड़ा फीस लेवल बढ़ेगा उनका इसी बहाने से, और गाइडेंस क्लाइंट्स को कि कैसे रिकॉर्ड्स मेंटेन करें, ये बहुत एसेंशियल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं है रिकॉर्ड्स कीपिंग का। एक्साइज में देयर वर प्रोडक्शन रजिस्टर्स, यहाँ पर नहीं है। एसएससीज हम लोग जब बहुत बारी विजिट करते हैं प्लांट्स, हम देखते हैं कि प्रॉपर नहीं है। जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हर स्टेप ऑफ प्रोडक्शन पे, वो इंफॉर्मेशन नहीं होती है। पीपल आर मोर फोकस्ड ऑन मेरे पास इनवॉइस है, मैं इसका इनपुट इंटाइटल्ड हूँ, बट बैकएंड पे प्रोडक्शन में कौन सा इनपुट सेमी फिनिश में है, कौन सा रॉ मटेरियल एज इट इज रखा हुआ है और कौन सा फिनिश में है, उसका बाइफरकेशन प्रॉपर नहीं होता, which is creating an issue and creates a opportunity for the department to arm twist the taxpayer in case of any visits or any raid. Just Mohit ji, very interesting discussion. मेरी आवाज आ रही है? जी सर, बुलंद आ रही है। आवाज आ रही है, वीडियो ऑन नहीं है सर आपका। वीडियो पता नहीं क्या हो रहा है, अभी देखूंगा क्या। मैंने कहा ये हो जाए उसके बाद चेक कराऊंगा, मुझे बीच में डिस्टर्ब नहीं किया मैंने। मैं थोड़ा शेयर करना चाह रहा था एज फार एज द प्रोडक्शन कैपेसिटी एटसेट्रा और the prescribed formats of maintenance of books of accounts. These were the requirement earlier also in the sales tax regime or the VAT regime. वो सेंट्रल एक्साइज में भी फॉलो करते चले आ रहे थे। जीएसटी में यहाँ उतना स्पेसिफिकली नहीं गए, शायद बिकॉज ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का उनके दिमाग में रहा, बट उससे कंफ्यूजन्स बहुत क्रिएट हो रहे हैं। एसएससीज उसको अपनी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स को लाइटली ले रहे हैं। सेक्शन 35 आईएनएस को स्टैंडर्ड्स आपके इंस्टीट्यूट ने प्रिस्क्राइब कर रखे हैं, but only very large listed companies or the companies which are very well complied वही उसको follow करते हैं। Most of the medium class or MSMEs they are not following those principles. उनके लिए एक प्रॉब्लम हमेशा से मैं कहता चला आ रहा हूँ, जीएसटी में अगर उनका कोई भी इन्वेस्टिगेशन होता है डिटेल्ड में तो उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और वो प्रॉब्लम आरएफडी टैग्स अगर आते हैं तो उसमें अगर वो एमएसएमई इंडस्ट्री के ऊपर भी लागू करते हैं तो दैट वुड क्रिएट अ वेरी डिफिकल्ट पोजीशन फॉर एमएसएमई। देखिए लार्ज यूनिट्स तो इसको कर रही हैं। I was talking to a very, very large steel industry today itself in the morning. So they were already doing it. They have already putting RFD tag on each of their steel product. Not now, but for their own management purpose, for their own records and tracing the finished product, etc. So उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, बट जैसे ही मान लिया वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट, वो कॉइल या वो पर्टिकुलर लार्ज क्वांटिटी ऑफ द स्टील मार्केट में आता है और उसको कट करके या उसका कोई उसमें कोई स्मॉल कोई प्रोसेस करके चलता है, तो वहां पर अगर आरएफडी टैक्स की या यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क की रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट ने लगा दी, जो कि सबसे बड़ा एरिया हो सकता है फॉर
चेकिंग द इवेजन ऑफ टैक्स, तो कंप्लायंस के बर्डन्स बहुत बढ़ जाएंगे स्टील इंडस्ट्री। और उससे जैसे आपने पूछा कि प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, वो ट्रिमेंडसली बढ़ी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भी और कंप्लायंस के एडवोकेट्स। वो पॉजिटिव तो वही है, जितने चैलेंजेस उतने अपॉर्चुनिटी है। तो अब यहाँ तो हम इसको वो समझ लें कि भाई ये क्या आ गया, या हम ये कि ये भी आ गया, तो जिंदगी में और कलर आ जाएंगे फिर। हाँ देखिए, जो जेन्युइन डीलर्स हैं, जेन्युइन मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अगर ओवरऑल आईटी टैग से, यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क से आप जेन्युइन डीलर्स को सपोर्ट दे रहे हैं, जो इनजेन्युइन मैन्युफैक्चरिंग होता है, जिसके लिए स्टील इंडस्ट्री में गाजियाबाद बहुत फेमस रहा है, एंड बिकॉज ऑफ ओनली फ्यू मैन्युफैक्चरर्स, नॉट ऑल, सो उनके ऊपर लगाम लगी। दैट वुड बी गुड एंड हेल्दी थिंग फॉर ओवरऑल स्टील इंडस्ट्री, ये मेरा मानना है। क्योंकि देखिए, अब बड़ा काम, बहुत कोई लार्ज स्केल पे काम आप लुक छुप के बुक्स में अपने प्रोडक्शन को न दिखा के नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि इकोलॉजिकल चेंज हर जगह से आ रहा है, चाहे वो इनकम टैक्स हो चाहे जीएसटी हो, क्योंकि दे आर ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल आल्सो। या So ये तो बहुत point is पहले that से होता चला आ रहा है। हाँ, मतलब it is not the thing that it has just came in. So they have done their homework in terms, if you see the income tax return also, there is a particulars in respect of that. तो अब ऐसा नहीं होगा कि there is a production not shown in the books of accounts, correspondingly there is a huge amount of electricity invoices, Yes. or vice versa, कि there is a production but there is no electricity. या So इलेक्ट्रिसिटी का तो देखिए, जहां अगर मैं देखूं, देखिए अभी तो स्टैंडर्ड्स ऑफ असेसमेंट एंड ऑडिट बहुत गिर गए। आई एम वेरी सॉरी टू से, ऑफिसर्स आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स एट ऑल। बट अगर मैं आज से 20 साल पहले के ऑफिसर्स की बात करूं, तो वो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन को कंसीडर करते ही थे। जैसे अगर मैं मानूं कि कोई ऑयल मिल है, तो ऑयल मिल से एक पर्टिकुलर टाइप के ऑयल निकालने में क्या क्या केमिकल्स लग रहे हैं, कितनी इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, उसके हिसाब से कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, और प्रोडक्शन कम हुआ तो क्यों कम हुआ, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता था शो कॉज नोटिस में, और इसके ऊपर रेट्स होते थे। रेट्स तो यहां तक होते थे कि यदि आपकी फैक्ट्री, मान लिया कोई बड़े जैसे स्टोरेज टैंक्स होते हैं, रेलवे लाइन के साथ हैं, अब रेलवे लाइन के साथ जब ट्रेन जाती है तो उनमें वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन होता है तो वो वाइब्रेशन के साथ ऊपर भी जाता है टैंक में, तो उस समय जो उसका गेज होता है, वो गेज 2-3-4 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है। उस समय यदि रीडिंग टीम आई और उन्होंने नोट कर लिया कि साहब ये तो इस समय इतना था, और एक्चुअली वो जब वो सेटल होता है तो 3 सेंटीमीटर नीचे सेटल होता है, तो उस पे क्योंकि उसके सरकमफेरेंस काफी बड़ा होता है, तो ह्यूज क्वांटिटी का फर्क, मतलब वहां तक भी स्टैंडर्ड्स को असेसिंग अथॉरिटीज चेक करते थे। लेकिन अब तो साहब बस पकड़ना है उन्हें और काम करना है। वेरी सॉरी टू से, नहीं सर, बिल्कुल नो ठीक है। बडी। अक्सर बड़ा सिंपल उनके क्वेश्चंस होते हैं कि ये मिसमैच आ रहा है रिटर्न में, बस आप इसी को एक्सप्लेन कर दीजिए। उसके बियॉन्ड जाके ऑडिट्स में या इन्वेस्टिगेशंस में वो क्वेश्चन ही नहीं कर पा रहे हैं अभी। अच्छा अभी प्रतीक, एक्चुअल डेटा का पोटेंशियल नहीं यूज हो रहा, जो गैदर हो रहा है इस पोर्टल से जीएसटी के, उसका यूज नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट। एक क्वेश्चन और था, मतलब जो जी मास को तंग कर रहा है इस वक्त, कि जो मेजर शोकोज नोटिस है दैट इज ओनली टॉकिंग अबाउट द मिसमैच, दो रिटर्न्स की फिगर नहीं मिल रही, और वो भी सुविधा अनुसार, कि अगर हमने 9 में करेक्ट कर ली है बुक्स के हिसाब से, बट दे विल टेक वेयर एवर देयर इज अ डिफरेंस। तो एक यस मन में ये सवाल था कि
ये जब टैक्स की एडिशन कर रहे हैं, टैक्स डिमांड कर रहे हैं, ये कभी भी प्रोविजंस नहीं लिखते कि अंडर विच प्रोविजन दे आर सेइंग कि दैट वी आर डिमांडिंग द टैक्स। एग्जांपल के तौर में मैं आपको एक पोजीशंस रख रहा हूं, उस पर थोड़ा सा हाईलाइट दीजिएगा बिफोर, जी क्योंकि हम टाइम को भी शॉर्ट समझ रहे हैं थोड़ा सा। जी कि एक इनवॉइस था जिसमें आउटवर्ड सप्लाई एक रजिस्टर्ड पर्सन ने करी, उसमें टैक्स का अमाउंट था, अज्यूम करते हैं 1-1 लाख रुपए टैक्स अमाउंट था, सीजीएसटी एसजीएसटी। तो इनिशियली उसने एक रजिस्टर्ड पर्सन को इनवॉइस जो दिया था वो 09 उसने स्टेट चूज कर लिया था, बट he was supposed to choose, he was having 2 GSTN number in the same state. ओके बाद में जब उसको पता चला, he rectified the GST number, बट अमेंडमेंट करते समय वो 1 लाख को 10 लाख लिख दिया। ओके अब ब्यूटी क्या है, यू कैन नॉट मेक 2 अमेंडमेंट्स। आपको पता भी है कि ये सिर्फ टाइपो एरर है और आपने इसको एनुअल रिटर्न में ठीक कर लिया। करेक्ट। अब इस केस को भी they are not understanding and making addition on the ground that you have passed on the ineligible ITC or you have passed on the excess ITC. तो इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? इसमें सर एक तो रिवीजन ऑफ रिटर्न की जो समस्या थी, उसके जीएसटीआर 1A को इंट्रोड्यूस करा अभी गवर्नमेंट ने, काफी टाइम बाद करा 1A को, कि अगर हमसे 1 फाइल करते हुए गलती हो जाए तो उसको करेक्शन हम 3B फाइल करने से पहले, 3B में हम टैक्स जो पे करते हैं उससे पहले रेक्टिफाई कर लिया जाए 1A के थ्रू। एक तो ये बहुत पॉजिटिव स्टेप है इस तरह की जो आई वुड से पंचिंग मिस्टेक्स होती हैं उसको ठीक करने के लिए। बट जो पीरियड बीत चुका, जैसे कि 17, 18, 19 और टाइम बार्ड हो गया, अब रेक्टिफिकेशन नहीं हो सकते उसके, उसमें हाई कोर्ट्स ने रिव्यू करे हैं मैटर्स। 1-2 मैटर्स मेरे भी हैं जो मैं आर्ग्यू कर रहा हूँ बिफोर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, और एक बॉम्बे हाई कोर्ट में मैंने करा था मैटर। उसमें रिगार्डिंग विद एक्सपोर्ट पंचिंग एरर्स थे, वेरिन इनवॉइस नंबर गलत थे, कमर्शियल इनवॉइस नंबर रिपोर्ट कर दी इंस्टेड ऑफ जीएसटी में जो इनवॉइस नंबर थे, और उसकी वजह से मिसमैच बिटवीन द टू पोर्टल्स ऑफ कस्टम्स एंड जीएसटी अराइज हो गया एंड रिफंड रोका था। तो इस तरीके की सिचुएशंस में डॉक्यूमेंट्स जो हैं हमारे, जो हमारी इनवॉइसेस हैं, हमारे चलान्स हैं, हमारा ईवे बिल है, हमारी जो बायर है उससे एक्नॉलेजमेंट हमें असेसिंग अथॉरिटी के सामने प्रोड्यूस करनी चाहिए टू मेक आवर क्लेम प्रूव जेन्युइन, सो दैट एटलीस्ट दे कैन हैव सम मटेरियल ऑन रिकॉर्ड। हो सकता है वो यहाँ पे ना एक्सेप्ट करें, वो रिटर्न से अपना चलते हैं, बट हमें एट अ लेटर स्टेज रिलीफ अपने डॉक्यूमेंट्स पे ही मिलेगा, जो कि बार बार हाई कोर्ट्स और काफी कोर्ट्स कहते हैं। इवन पीछे पिछली रिजीम में ट्राइब्यूनल्स भी डॉक्यूमेंट्स पे ही रिलाई करता है, एंड द कोर्ट्स वेरी वेल एक्सेप्ट की पंचिंग ह्यूमन मिस्टेक एरर्स होंगे, क्योंकि इवन द जजेस आर नॉट कन्वर्सेंट with the electronics and the computer system। तो ये दिक्कत है, और पोर्टल हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में है अनफॉर्चुनेटली, जबकि हमारी नेशनल लैंग्वेज एक तरीके से हिंदी है, तो बहुत लोग समझ भी नहीं पाते कि कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ पे डिक्लेयर करनी है। बट ये इश्यूज उठा रहे हैं, प्रैक्टिकली मैंने भी फेस करा है। असेसिंग अथॉरिटीज नहीं मानते इस चीज को, वो बोलते हैं कि जो आपने फर्स्ट टाइम डिक्लेयर करा था दैट वाज राइट, और जो हायर वैल्यू है उसको लिया जा रहा है सुविधा अनुसार। सुविधा अनुसार, बिल्कुल। ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है, बट हमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं और उसके सपोर्टिंग जो हम प्रूव कर सकते हैं, जैसे डिलीवरी है, कस्टमर से हम रिसिप्ट ले सकते हैं, क्वांटिटी है, रेट है, वी कैन प्रूव थ्रू दोज एविडेंसेस एंड डेमोन्स्ट्रेशन, रिकंसिलेशन करा के कि हमारे एक्चुअल वैल्यूज ये थे, जो कि सिर्फ पंचिंग एरर हो गए हैं। और इस पे जजमेंट्स हैं कुछ हाई कोर्ट्स के which you can use for taking the benefit. Over to Arvind ji.
ठीक है साहब, जैसा आपने मुझे, और कोई किसी की कोई जिज्ञासा है? जितन साहब आप भी देख पूछ लीजिए कुछ सवाल आप, साउंड खोल लीजिएगा। सभी को नमस्कार। सर मेरा एक क्वेश्चन ये आ रहा था कि आईएमएस जो है सर, उसमें हम जब क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन ने दिया हुआ है 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर के केस में, और वो जैसे उसका पीरियड होता है कि बिफोर फाइलिंग ऑफ सीबी, तो यस। उसको हमें एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना होता है। तो इस केस में हमें हर मंथ में 23 तारीख से पहले करना चाहिए, या पूरे क्वार्टर का समय, क्या इसमें प्रॉपर गाइडलाइन क्या है? इसलिए सर आप मंथली बेसिस पे करिए, क्योंकि इसमें एक कमी ये है कि डीम्ड एक्सेप्टेंस का प्रोविजन है। अगर आप जी कोई एक्शन नहीं लेते तो ऑटोमेटिकली सब कुछ एक्सेप्ट हो जाएगा जो आपके आईएमएस में आ रहा है। तो जी। एक्शन तो आपको टाइमली लेना चाहिए। ओके। मेरा सजेशन तो यही है कि जब आपका इनवॉइस रिफ्लेक्ट हो रहा है, और अगर आपको कहीं एम्बिग्विटी है कि मेरे पास इनवॉइस नहीं है बट हो सकता है कि ये मेरे ही पर्टेनिंग है, तो उसका आप जी पेंडिंग कर दीजिए। एंड लेट योर टीम फॉलो अप विद दी वेंडर कि ये आपने किस चीज के लिए मेरे को इनवॉइस शो करा है, मेरे जीएसटी पे आपने डिक्लेयर करा है, सो दिस इज रिगार्डिंग विद सप्लाई, और उसका आप एक्शन नेक्स्ट मंथ में लीजिए। जी बट एक्शन टाइम से लेना बहुत जरूरी है। इस फैसिलिटी में एक और दिक्कत ये है कि कोई यूटिलिटी नहीं बनाई गई। तो जी जहाँ पे इनवॉइसेस बहुत ज्यादा हैं, वो एसएससीज का ये कहना है कि अभी हम डीम्ड एक्सेप्टेंस पे चल रहे हैं। बट जी मैं उनको यही सजेस्ट करता हूँ कि आप टाइम जरूर लगेगा बट उसको सेलेक्ट करके लीजिए, क्योंकि कल को वो गलत आईटीसी अगर आपके आईटीसी लेजर में आ गई तो जी। जवाबदेही आपकी फिक्स हो जाएगी। हाँ, वो अथॉरिटीज उस पे ये नहीं मानेंगी कि आपका क्लेम नहीं था ये जी आईटीसी का, एंड दिस सप्लाई वाज नॉट पर्टेनिंग टू यू। तो ओके। ये एक चैलेंज है बहुत बड़ा। जी जी क्वार्टरली क्ले दिक्कत है। क्वार्टरली का इनवॉइस भी बहुत बार लोग जो टैक्स पेयर्स हैं, क्वार्टरली फाइलर्स, वो लेट डिक्लेयर करते हैं, जिसकी जी वजह से आगे जो बायर्स हैं उनके उनको आईटीसी नहीं मिलता है टाइम से। जी तो मेरे ख्याल से तो विद टाइम क्वार्टरली का कॉन्सेप्ट खत्म कर देगी गवर्नमेंट, और सभी को जी एक ही लेवल पे कर दिया जाएगा कि आप हम्म, मंथली फाइलिंग करिए अपना रिपोर्टिंग। एंड जी क्योंकि आईएमएस की स्कीम के हिसाब से मंथली ही चल पाएगा, क्वार्टरली जी बहुत टाइम तक नहीं हो पाएगा। तो जी इंडस्ट्री को गेयर अप तो करना पड़ेगा अपने आप को इसलिए। सर। सर एक एक छोटा सा क्वेश्चन और है सर, जी कि सर प्लीज। सर जैसे 2020-21 फाइनेंशियल ईयर था, उस पीरियड में कोविड भी आ गया था, फेब एंड मार्च में कोविड यस रहा। यस। तो उसमें क्या हुआ कि सर जैसे 2A में तो हमारे वो रिटर्न्स इनवॉइसेस शो हो रही हैं, लेकिन 2B में लेट हो पाई, और उसके नोटिसेस डिपार्टमेंट दे रहा है, रिप्लाई देने के बाद भी वो कंसिडर नहीं कर रहे उसको। उसके आपके लिए क्या? इनवॉइसेस टू बी में कट ऑफ डेट के बाद आए हैं, हाँ और जी। आप आईटीसी अवेल कर चुके थे उसका 3 बी में पहले। हाँ हाँ जी। तो देखिए टू जो आया है सर, वो जनवरी 2021 से इम्प्लीमेंट हुआ है। जी प्रायर टू दैट 2A वाज द अप्रोप्रिएट रिटर्न फॉर जी आईटीसी, उसके बेसिस जी पे आपको क्लेम करना था। तो आप जी अथॉरिटीज के सामने क्लेम रख सकते हैं जो जनवरी के पहले के मंथ्स हैं, जी उनका आईटीसी अगर आप वो 2B के हिसाब से असेस कर रहे हैं, तो उसमें आप ये प्ले लीजिए कि ये 2A के हिसाब से करना था, क्योंकि 2B तो इन्वेसेज ही नहीं हुआ था, इट वाज नॉट जी देयर। कुछ चीज पैदा नहीं हुई उसके बेस पे आप कैसे मेरे को असेस करेंगे। जी तो जी एक तो ये प्ले आप लीजिए। सर। 2B 2B में भी अगर आपका इंटरेस्ट मांगा जा सकता है, 2B के जी केस में आपने पहले ले लिया, अगर जनवरी के बाद की डिमांड्स हैं ये, सर। जनवरी 21 के बाद की, तो इंटरेस्ट की डिमांड करी जा सकती है इफ यू हैव क्लेम दिस आईटीसी विद इन द टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 16(4). जी जी सर, उसमें एक छोटा सा इशू ये रहा कि बिकॉज ऑफ कोविड पीरियड, और गवर्नमेंट ने उस समय रिलैक्सेशन दिया था कि आप जो है रिटर्न्स जून जुलाई तक फाइल करने के लिए, क्योंकि वो काफी दिन चला था कोविड, तो यस। लोगों ने रिटर्न से लेट लेट फाइल करी, और उसको भी कंसिडर करने को राजी नहीं है डिपार्टमेंट।
भाई जब रिटर्न्स ही फाइल लेट हुई तो 2B में तो सर लेट ही शो होगा ना सर? लेट शो होएगा सर, लेट शो होएगा, वो बात बिल्कुल ठीक है आपकी। मेरे ख्याल से जो वेवर स्कीम है, इसको जी इंडस्ट्री को प्ली करना चाहिए कि 2021 के, क्योंकि कोविड ईयर है, जी उसको एक्सटेंड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे है नॉन कंप्लायंसेस हुई हैं और इंटेंशनली नहीं थी किसी की भी, जी मजबूरियां थी, जेन्युइन इश्यूज थे एसएससीज के साथ। और ये क्यों नहीं किया गया, ये बड़ा एक क्वेश्चन है अपने आप में कि जी 2021 के लिए नहीं रिलीज दिया while deciding the amnesty scheme. सर But if it is satisfying section 16(4), आपका जी नेक्स्ट ईयर 16(4) की जो कट ऑफ डेट उन्होंने सेट करी है नवंबर जी 20, जैसे फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए हाँ क्लेम, सर, नेक्स्ट नवंबर ईयर 21। 21 तक सर अगर आपने क्लेम करे तो आपको आईटीसी मिलेगा। ओनली इंटरेस्ट मांगा जा सकता है अर्ली अवेलमेंट पे, उस पर सिर्फ सर इंटरेस्ट की वैसे ऐसे डिमांड करे, आईटीसी डिनाई नहीं होगा आपका। सर उसमें तो देखिए सर, मतलब फैक्चुअली तो ये है कि जब हर आदमी परेशान था, गवर्नमेंट ने डेट एक्सटेंड करी, उसके बावजूद भी कंसिडर ना करना तो एक तरीके से हैरेसमेंट ही है बेसिकली। हैरेसमेंट है, हैरेसमेंट है। जहां आपकी रिटर्न्स की ड्यू डेट बढ़ी हुई है और आपने विद इन दैट ड्यू डेट्स एक्सटेंडेड ड्यू डेट्स फाइल करा है, तो वहां जी पे आप कोट कर सकते हैं जो नोटिफिकेशंस हैं रेलेवेंट एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट्स के, उनको सर फॉर द वेरियस मंथ्स का मल्टीपल नोटिफिकेशंस हैं जी फॉर द मंथ्स, क्योंकि फेज्ड वाइज मैनर में गवर्नमेंट ने जैसे जैसे सिचुएशन थी जी कोविड की एक्सटेंशन करा है। तो वो आप कोट कर सकते हैं, उनके बेसिस पे भी रिलीफ मिलेगा आपको, और सेक्शन जी 16(4) के प्रोविजन के बेसिस पे भी आप रिलीफ ले सकते हैं, सर। क्योंकि वो सर आपने नेक्स्ट ईयर के टाइम लिमिट से पहले पहले क्लेम करें, बिल्कुल वो सर। डिनाई नहीं करेंगे उसको। सर सर इसमें कोई नोटिफिकेशन नंबर वगैरह अवेलेबल है सर? मैं आपको शेयर कर दूंगा, क्योंकि सर मल्टीपल नोटिफिकेशंस हैं इसके। सर मैंने एक सर लिस्ट बनाया हुआ है जो हम लोग सर असेसमेंट्स में यूज करते हैं, मैं जी आपको सर। शेयर कर दूंगा वो। राइट सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। चलिए साहब, और किसी की कोई जिज्ञासा? शेखी साहब, आपकी कोई प्रश्न है क्या? नहीं? नहीं तो फिर आपको धन्यवाद तो देना ही बाद में। शेखी साहब साउंड, हाँ, कोई है क्वेश्चन आपका? नो क्वेश्चन सर। चलिए अच्छा है। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं सर। चलिए अच्छी बात है, क्वेश्चन नहीं। तो चलिए साहब, और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं तो फिर हमारे AK शेख साहब जो एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट, ओ सॉरी, चंडी अमृतसर में, बॉर्डर के पास, तो धन्यवाद के दोस्त सब दीजिएगा। सर्वप्रथम धन्यवाद श्री आदरणीय अरविंद शर्मा जी के। आपने एक टेक्निकल सेशन जीएसटी एमनेस्टी स्कीम और रिसेंट चेंजेस के बारे में कराया। एडवोकेट प्रदीप गुप्ता जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से जीएसटी एमनेस्टी स्कीम को समझा दिया है, और जो रिसेंट चेंजेस हुए हैं जिसमें HNC HSN इंक्लूड करने की बातें कही गई हैं, तो वो सिंपल तरीके से समझाया है। क्वेश्चन ही नहीं बनता, बड़ी इतने सिंपल तरीके से समझाया है। और आज के उद्बोधन के लिए, आज के सेशन के लिए एडवोकेट प्रदीप गुप्ता जी का कोटि कोटि धन्यवाद। सर मोहित जी का भी धन्यवाद दीजिए थैंक यू सर, सर। स्टार्टिंग में मोहित। हाँ अरे सर सर मोहित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाया और बड़े रेलिवेंट क्वेश्चन रेज किए, ताकि टाइम भी फिलअप हो गया उस हिसाब से। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आगे के लिए थैंक यू इनसे सर। निवेदन कर लो कि आगे भी आएंगे। हाँ जी, मैं प्रार्थना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे टेक्निकल सेशन हर महीने में कम से कम एक तो जरूर करवा दिए करिए। हमारी भी नॉलेज इससे इंक्रीज होती है, हम भी प्रोफेशनली इस प्रैक्टिस को कर ही रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय AK शेख साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय CA मोहित कोलचा साहब एंड प्रतीक गुप्ता जी। और आपने समय दिया, और जोम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय दिया। जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार GST के ऊपर ही है। हालात को ऐसे ना होने दें, हालात को ऐसे ना होने दें कि आप हिम्मत हार जाएं। हालात को ऐसे ना होने दें कि आप हिम्मत हार जाएं, बल्कि हिम्मत ऐसी रखें कि हालात हार जाए। अति सुंदर सर, सुंदर। इरशाद करते हैं फिर तो सर हम, वाह वाह, ये माहौल बना रहेगा। हाँ देखिए हमारे जो है ना PN चौधरी साहब आते ही तभी हैं लास्ट में, दोबारा बोलते हैं इसको, हालात को ऐसे ना होने दें कि आप हिम्मत हार जाएं।
जी जी। हालात को ऐसे ना होने दें कि आप हिम्मत हार जाए, बल्कि हिम्मत ऐसी रखें कि हालात हार जाए। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। वाह वाह। एक्सीलेंट। बोलता साहब, एक शायर ने कहा है, ये कहकर फेंक दिया अहले कारवां ने चिराग, हम्म, ये कहकर फेंक दिया अहले कारवां ने चिराग, हमें वक्त से पहले पहुंचना है मंजिल पर। अब चिराग की भी आवश्यकता नहीं है। तो इसी में वो ऐड कर देते ना जो आपने कहा, क्योंकि अभी 2 मिनट का और सदुपयोग करना है हमें। तो नहीं, आप टाइम की चिंता ना करें, नहीं नहीं, हमारा तो स्टार्टिंग टाइम है टाइम इंटरव्यू आपने को तो एक लेकर। अच्छी चीज तो क्या सिखाई सर, जो मैं काफी मिस होती है कि एवरीवन हैज द वैल्यू इन द टाइम। तो आप बिल्कुल टाइम से स्टार्ट करते हैं, टाइम पे खत्म करते हैं, तो वो इट्स अ गुड थिंग, और हम चाहेंगे ये कंटिन्यू रहे। तो वो एक अच्छा सा वो भी है ना कि ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों को कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो जो आप कह रहे हो वो उसको और सपोर्ट करते हुए, अब जितनी जल्दी हम मान लें कि जीएसटी में भी यही है कि मुश्किलें तो हैं, बट हम भी उसके कहीं ना कहीं परिपूर्ण हो जाएंगे, और ये मुश्किलें कहीं ना कहीं हमसे हैंडल हो जाएगी बेटर। इसमें मोहित जी, हमारे गुरुदेव का एक थॉट है, प्रतिभा किसी की बपौती नहीं है, प्रतिभा किसी की बपौती नहीं है, पुरुषार्थ की चेरी है। सही। ऑफ कोर्स। जो भी आदमी पुरुषार्थ करेगा किसी भी फील्ड में, एनी फील्ड। हम्म नहीं नहीं, सही बात है, ये भी बीच बीच में बिल्कुल जरूरी सही है बात। सर, हम्म ऊर्जा डालती हैं ये चीजें। हम्म चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये 3 बार हमको उच्चारण करते हैं। ओम। शांति शांति शांति। शांति शांति। सभी को सभी को नमस्कार। सब थैंक यू एवरीवन। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्ति